सब कुछ डिपेंड करता जर्मन सलाम अलैकुम। जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज आपकी। थैंक यू। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2 मिनट दे दीजिए। मैं फिर आई इंट्रोड्यूस द टीम। वी आर वेटिंग फॉर आवर colleagues to join us from Karachi office.
लेके आए हैं नवीन और लोग। आगे किसान भी है। ठीक है चलो। मोहसिन आगे, मोहसिन सिर्फ मोहसिन और आप। Gentlemen, just 1 minute, 1 or 2 minutes, and then we start. So we have almost 38 participants by now. तो मैं आपको बस आप 2 मिनट दे दीजिए और लग रहा है this one. ठीक छोड़ नहीं है। Okay. Okay, if there is any lady or ladies and gentlemen, so my name is Parvez Khan. I think some of you know me already. अयाज आपको आवाज आ रही है? Just to confirm. जी परवेज साहब, I can hear you loud and clear. Thank you. So I am the chairman of the board of Skill Logistic Group, Skill SLG Tracks. So as you know, today is our second investor presentation during 2025. आपको याद होगा हमने कराची में एक थ्रू PSX में इवेंट किया था. I think it was in February or March. और लास्ट ईयर हमने IPO के बाद IPO के दौरान बिफोर IPO हमने एक रोड शो किया था और एक उससे पहले भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की थी पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची में. So we are averaging about 2 presentations a year. Just since we believe that there have been more than one transactions at our end, so we have to keep the investors informed. For example, हमने April 2024 में IPO की है और April 25 में ये merger transaction की है.
hence the need to keep the markets informed, analysts, investors informed about the developments at our end. So आज जो आपको प्रेजेंट करने जा रहे हैं लिटिल बिट अबाउट द मर्जर, कब इसकी क्या की डेट्स हैं आपको आज मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं कि वी हैव एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मर्जर वी हैव क्रिएटेड अ यूनिक कॉम्बिनेशन of e-commerce, logistic and other verticals that we have. And we also want to brief you as a result of this merger, what long-term synergies have been identified और इस merger का business case क्या था और उसको हमने जो immediate financial benefits हैं उनको भी quantify किया, आपको वो भी share करेंगे. Consequently, जो नई SLG ट्रैक्स है उसकी क्या शेप निकली है in terms of board of directors, shareholding, footprint and so on. And then we will move to the two sections on financial outlook जिसमें 6 monthly इस साल के हैं annual और 5-year outlook और हमने आपको ratios और on fully diluted basis EPS और वो डिस्कस किया है और थोड़ा सा हम आपको अपना एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे हैं वैल्यूएशन का एंड कंसीडरिंग दैट आज का ऑडियंस जो है वो ज्यादा सेकेंडरी मार्केट म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टर्स हैं सो हमने आज एनालिसिस पे प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे फोकस किया है बट आई एम श्योर यू आर ऑल covering the market you will carry out your own analysis based on other multiples like EBITDA का multiple है या price to book या price to revenue and maybe DCF and so on so forth. But हमने आपको एक बड़ी potent और एक focused valuation का analysis दे रहे हैं and which I am confident will make sense to you. Let's move on. Next. So जो merger था इसकी discussion we started in August 24 or under a scheme of arrangement which is under the section 279 to 283 and 285 of the Companies Act. Secure Logistic, the old Secure Logistic group and Tracks Online, they merged and Tracks Online is a wholly owned subsidiary of SLG. SLG is a parent company. And this was approved by the majority members of both companies. It should say members of SLG and Tracks. All are creditors, SECP and CCP. And consequently, Honorable Islamabad High Court, they passed the order on May 5th, which formalized the merger approval. Usse pehle, I would say almost November, December onwards, after the agreement of the commercial terms and after the merger approval date, both sides have been working diligently on the integration and for a bada comprehensive integration plan put together hua, which covers organization, infrastructure, kaun se office overlapping hai, assets ki nai revamping, how can old SLG commercial fleet support the last mile requirement of e-commerce business and so on and so forth. वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस कॉम्बिनेशन से क्या synergies, integration driven synergies जो है वो ड्राइव हुई हैं. So what we have today is a unique asset heavy and light combination. The old SLG contributed commercial fleet, diversified cash flow stream to हमारा logistic. We were in traditional logistic, a small IoT business and a substantial COT services business. Experience stream वो दोनों तरफ से आई. हमारा भी footprint था but Tracks का हमसे भी बड़ा footprint है. But we also I would there are few participants थोड़ा सा mute कर दें अगर क्योंकि आवाज आ रही है कुछ participants की background से तो I'll be grateful. Whenever you have questions, then you can remove your, you can come back online. Okay, so Tracks
जो सबसे बड़ा ट्रैक्स का कंट्रीब्यूशन है वो 2 कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस लाइंस हैं ऑफ ई-कॉमर्स, इट्स नॉट लास्ट माइल ई-कॉमर्स एंड वेयर हाउसिंग। एंड उसके अलावा we Trax contributed and the combined company has inherited a very elaborate technology platform जो अब फिनटेक के एडिशन से और बढ़ रहा है। एंड कंट्री वाइड रीच ई कॉमर्स की हमें मिली और हमारी जो कंबाइंड अब कंट्री वाइड फुटप्रिंट आगे दिखाऊंगा वो बहुत बड़ा हो गया है। और ऑल्सो टीम विच कवर्स देयर 2 BLs which is also spread across the country. So ये एक एसेट हैवी और लाइट कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों साइड्स ने प्राइमरीली ये कंट्रीब्यूट किया। Next. अब इसकी वजह से I think we are the only company, a 4PL logistic player in the domestic market जो फर्स्ट टू लास्ट माइल करती है। हम लॉन्ग हॉल सर्विसेज दे रही हैं ऑन 40 फीट 20 फीट कंटेनर्स, हम मीडियम हॉल दे रहे हैं आपको आगे दिखाऊंगा, और हम लास्ट माइल दे रहे हैं, हम ई कॉमर्स कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग कर रहे हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज सपोर्टेड बाय इन हाउस सिक्योरिटी सर्विसेज एंड IoT एसेट ट्रैकिंग सर्विसेज। सो देयर आर टोटल 5 लीगल एंटिटीज जो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूं जो क्या कवर कर रही है, आपको नजर आए। नेक्स्ट, हमारा नेशन वाइड फुटप्रिंट बाय एंड ऑफ 25 120 ऑफिस प्रेमिसेस हैं, इंक्लूडिंग 5 कॉर्पोरेट एंड रीजनल ऑफिसेज हैं, एरिया ऑफिसेज, मार्शल यार्ड्स। मार्शल यार्ड वहां जहां ट्रक पार्क होते हैं उनकी मेंटेनेंस होती है। सबसे बड़ा लाहौर में है, मुल्तान रोड पे। इधर हमारे वॉशिंग पिट्स हैं, वर्कशॉप्स एंड सो ऑन, एंड रिटेल आउटलेट्स, ब्रांच ऑफिसेज। Geographically, we cover 160 cities countrywide, और हम we are servicing in all our verticals the 300 plus B2B clients and B2C को 9,000 हमारे रिटेल क्लाइंट्स हैं। और इस साल के एंड तक ऑलरेडी 3 वेयर हाउस हैं, बट जो 2 हैं छोटे हैं, हम तीनों को प्रॉपर वेयर हाउसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय एंड ऑफ दिस ईयर, और कमर्शियल गाड़ियां अप्रोक्सीमेटली 300 हो जाएगी। ये आपको मैं एसेट भी आगे दिखा रहा हूं, और बाय एंड 29 तो दिस नंबर ऑल ऑफ दिस across the board asset, the infrastructure, it would expand considerably. ये वो सिनर्जी जो मैंने पहले बात की टेबुलेटेड फॉर्म में है। वन लास्ट टाइम कुछ लोगों ने आपने साल के शुरू में मैंने दिखाई थी। नेशन वाइड कवरेज, B2B कॉर्पोरेट लॉजिस्टिक्स, लॉन्ग हॉल, कंपनी ओन्ड फ्लीट, सिक्योरिटी एंड एसेट ट्रैकिंग, TIR सर्टिफिकेशन। अच्छा, TIR पे बिकॉज ऑफ द मर्जर वी वर बिट बिहाइंड, बट हमारा ट्रायल रन हो गया है। हमारे 2 ट्रक ताशकंद से राउंड ट्रिप करके आ गए हैं। नाउ वी आर गियरिंग अप टू हैव, और हमको 20% ऑफ द लार्ज फ्लीट, 20-25% रीजनल मार्केट्स में डिप्लॉय करना चाहते हैं, बट वील कम टू दैट अगेन लेटर। टेक्नोलॉजी आपको आज में हम ये दिखाना चाहते हैं कि कितना बड़ा हमारा टेक्नोलॉजी स्वीट है, और फिनटेक क्या करेगा। NBFC license, day before, 2 days before yesterday, we received the NBFC license from SECP. I'll come to that. So these are all the synergies in a tabulated form which have created a unique combination and will drive our future growth. ये बिजनेस केस है। मैं इसमें सिर्फ जो क्रक्स है स्लाइड का, नंबर 1, business lines, all business lines are complementary, so there are no overlaps, which has contributed significantly. आपको numbers में नजर आएगा कि top line bottom line इसका क्या फर्क पड़ रहा है starting this year and going forward next 4-5 years. There are about 400 million rupees of savings, approximately 390-400 million, which were identified and are under execution from 1st May onward. So by 30th April next year, हम 400 million बचा चुके होंगे through HR rationalization, and I said infrastructure, offices, utilization of in-house fleet,
हमारे वेंडर्स में जो थी ओवरलैप हमने वो भी खत्म की है। सो ये सारा नजर आ रहा है बॉटम लाइन कंट्रीब्यूशन में। एसएलजी के एसेट्स मैंने कहा था वी वर एसेट हैवी, तो ये मर्जर से, और ट्रैक्स वाज टेक्नोलॉजी and countrywide footprint and complete infrastructure of e-commerce and warehousing. But they were relatively asset light. They had and have asset, but relatively asset light. Next. एक बैलेंस शीट आपको नजर आएगी. So now I think we have a real balance. पहले भी थी, but combined entity has a real balance sheet. हमारी अभी बहुत negligible leverage है. We can benefit, and I want to highlight we are the only logistic e-commerce play in the country with an A+, single A+ rating from PAPRA. So we have a substantial debt capital raising capacity. Countrywide network and expansion to regional markets. So I am visiting both Uzbekistan and Kazakhstan 3rd and 4th week of September, and which will be followed by our senior team. So we are working on different business initiatives with Central Asia, जिनको हम formalize करना चाह रहे हैं before the end of this year. और हमारा जो ट्रकिंग का भी मोमेंटम आएगा, और हम कुछ कोरियर साइड ई-कॉमर्स साइड पे भी टाइप्स करना चाह रहे हैं. Right now we work with UPS for example and some other players, but हम सेंट्रल एशिया की तरफ भी करना चाह रहे हैं और मिडिल ईस्ट में भी हम टाई-अप्स करना चाह रहे हैं. नेक्स्ट. आईटी में इस वक्त वी हैव गॉट, आपको भी दिखाऊंगा अगली स्लाइड पे, ई कॉमर्स का बहुत एलैबोरेट सब्सटेंशियल आईटी प्लेटफॉर्म है. आईओटी का हमारा अपना लाइसेंस है, अपना सॉफ्टवेयर इसको अपग्रेड कर रहे हैं, लॉजिस्टिक ऑपरेशन की भी डेवलप कर रहे हैं, और फिनटेक ऐड हो रहा है. फिनटेक में मैं एक सेकंड में आऊंगा, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा. So the conclusion is that SLG Tracks wants to further build its existing IT strengths, and we want to position ourselves, which we are, but we want to further position ourselves as a leading tech-enabled logistic and e-commerce entity, which is supported by FinTech. ये है ई-कॉमर्स एंड फिनटेक के मेन सॉफ्टवेयर. हमारे ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं, और दे आर आई थिंक दीस इन सॉफ्टवेयर की जो कैपेबिलिटी है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मार्केट, बाय आवर पीयर ग्रुप. टॉनिक, अपोलो, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक में अपोलो ये सारा सपोर्ट करते हैं. पर्पस क्या है? लैंग्वेजेस, they are all SAP compatible. हमारा SAP is our ERP, which is being formally launched in the verticals of old SLG. By next week उसकी लॉन्च शुरू हो रही है, और फिर आगे एक्सपेंड करेगा. और ये हमारी एप्स हैं, ये करंटली अवेलेबल हैं. इनमें जो पल्स है वो अभी लॉन्च हुई है. और इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड, इस पर वापस जाइएगा. I just want to say a word or two on Finova, which is उसका नाम हमें Finova नाम चेंज होगा. ये NBFC लाइसेंस मिल गया है. So the old Tracks shareholders with a technical partner, they had already developed e-commerce software जिसमें considerable investment हुई है, और वो सॉफ्टवेयर एक पायलट प्रोजेक्ट पे फरवरी 2025 से लॉन्च हुआ. 60-70 वेंडर्स उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक 70 मिलियन की क्रेडिट लाइन हर हफ्ते उसमें घूम रही है. तो वो जो उसका टोटल है वो इन फ्यू बिलियंस, इफ यू मल्टीप्लाई 70 मिलियन बाय 4 वीक्स एंड देन मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स, तो वो घूम चुकी है. सो उसको हमने फॉर्मल कर लिया है, और ये अब सॉफ्टवेयर ये फॉर्मल लॉन्च फ्रॉम LogiServe, which is one of our subsidiary. मैं इसको अभी आपको दिखाऊंगा, इसको लाइसेंस मिला है. 1 अक्टूबर से हम इसको फॉर्मल लॉन्च कर देंगे. तो ये NBFC is a major, we would say NBFC operation and digital payment platform and lending is a major value multiplier. Next. और ये नंबर्स आपको भी मैं शो करूंगा.
IoT सॉफ्टवेयर है और व्हीकल ऑपरेशन बनना है और ये एप्स फ्यूचर प्लान है, ये सारे लॉजिस्टिक के। सो ये आप देखिए कि नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एप्स, it's a very substantial software suite. Next. So, gentlemen and ladies, there are few slides on NBFC. So, LogiServe जो हमारी एक सब्सिडरी कंपनी है, आपको अभी आगे मैंने लाइक सेड आपको ऑर्गेनिग्राम में दिखाऊंगा। इसको अगस्त 19 को लाइसेंस मिला है, अक्टूबर 1 से हम फॉर्मल लॉन्च कर रहे हैं। And it's going to significantly boost efficiencies in e-commerce, plus the bottom line through lending spreads and through efficiencies. Additional of digital payment platform add हो रहा है, and जो NBFC operation है, उसकी जो rational है, it is based upon Pakistan's e-commerce ecosystem, whereby 93% of the transactions they still rely on cash on delivery mode, and which causes liquidity constraint for merchants. तो ये उसको रिमूव करेगा, एफिशिएंसी लाएगा। और दूसरा जो कैश की मूवमेंट में जो डिलेज है उसको रिमूव करेगा, और डिले की वजह से रीस्टॉकिंग, स्केलेबिलिटी में इश्यूज आते हैं, वेंडर पेमेंट्स, वो सारे रिमूव होंगे। ट्रेडिशनल बैंक, जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, वो इस सेक्टर को कम सपोर्ट करती है, जो एक किस्म का आप कह लें एसएमई स्मॉल मर्चेंट सेगमेंट है। So we want to fill these gaps by offering embedded financial services, और हमारी जो हम ऑफर करेंगे शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं, इनवॉइस फाइनेंसिंग है, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, and these are all integrated with our logistic and merchant operation. But having said this, this entire operation would be governed by prescribed regulatory framework, और उसके जो नीचे आपको आखिरी 3 बुलेट पॉइंट्स हैं, ये सारे उससे गवर्न होगा, और ये चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। और ये आपने जैसे जिक्र किया कि 9000 मर्चेंट्स को हम सर्व कर रहे हैं। सो वी हैव गॉट a massive data with us of these merchant and merchant behavior, जो हमारे इस सॉफ्टवेयर में सारा हमारे काम आएगा आगे। और ये डेटा सारा जो COD डेटा है, ये AI enabled credit engine में जाएगा। It will facilitate embedded lending by operational integration, ये जो NBFC जो हमारा डिजिटल और lending सारा सॉफ्टवेयर है, enabling repayment through COD deductions, direct merchant access and so on so forth। और ये दोबारा वही 4 हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैंने मेंशन किया हुआ है। डिजिटल पेमेंट्स हैं, COD रिसीवेबल्स हैं, इनवॉइस डिस्काउंटिंग है, और क्रेडिट टू फ्रीलांसर्स हो गए। So I will ask my colleague Mohsin Ali, जो कि हेड ऑफ कमर्शियल हैं, थोड़ा सा इस स्लाइड पे एक्सप्लेन करें in brief terms कि how this NBFC operation will work. Mohsin. Thank you, Parvez sir. Assalamu alaikum everyone. This is Mohsin Ali here. So I'll give a short preamble of how this NBFC thing would work. So traditionally what happens that the COD payments are collected by the logistics companies, these are reimbursed like after 7 days, 10 days, or like after a month or so. So a conference happened last year of digital banking and logistics, in which Chairman Banking also emphasized that how these logistics companies, especially SLG Tracks, are really important in this fintech play. So we developed, because these companies have data of thousands of merchants, which traditional banks, if they give them loans, would take months and multiple documentation, then they provide them loans. So our fintech that we developed here would serve the customers like if a customer's shipment, one of the product, if a customer's shipment is delivered, then on the delivery, and we have the data about that customer, and we have the cash that we are delivering, we have the items that we are delivering, backed by those, these payments are quickly and very immediately received by customer through our LogiServe system, fintech system, or NBFC. So what we do, we pick shipment from the customers, we deliver it,
and after 2 to 3, 4 days, we receive the cash in our system. But what happens at the customer side, they immediately receive that payment through our short-term loan system that NBFC offers. So that's how those funds are coming from the financial institutions or high net worth individuals. Those funds are utilized to provide quick short-term loans to the merchants. Those are settled by the amount we are recovering from the market. This is how this whole mechanism is served. There might be different other products that we are developing, and in future this NBFC play or fintech play would not only be for the e-commerce merchant base, but it will open gates for all the logistics players in Pakistan, especially SMEs that would get a huge benefit on that. So this is whole technology partner NBFC Tracks Online, which will be delivering the shipments, collecting the cash, giving it to NBFC, and NBFC will be reimbursing to the financial institutions. So this is how this whole NBFC play works, fintech play works, and the benefits are in it. And there are multiple products that can be developed, and we are developing those products that will be introduced in coming future, inshallah. Thank you, Mohsin. And please, you can save your questions. We will have a Q&A session at the end of the presentation. I forgot to mention, we have our Group CEO, Gurrez Khan, Deputy CEO Hassan Khan, Mohsin, and our CFO, Naveed Shaheen, available to answer any questions that you have at the end of the presentation. Next slide. मैंने अभी तक आपको intangibles primarily जो business case के थे, obviously those intangibles like, for example, complementary synergies, complementary BLs, सबका contribution at top line, bottom line. But on this slide, I want to show that we also identified certain direct financial benefits, those variables at play, or those benefits, those that were available to us as a result of this merger immediately, जो कि bottom line को impact कर सकते हैं. For example, as a merger discussions, our e-commerce business from February onwards has been recapitalized through an injection of 1.07 billion. Combination of debt and equity जो हमने inject किया है. Then we had available to ourselves tax credits और उसकी almost 1 billion rupees, जिसकी हम post merger optimal use करेंगे, और इसका जो benefit expected को 300 million का है in 25 and beyond, जो हमने एक estimate की है. इसी तरह I mentioned earlier को 400 million की हमने savings को identify किया और उनको execute करना शुरू कर दिया. और तो ये तीनों combined ये ऐसे financial impacts हैं जो this year and next year and a bit beyond हमारी bottom line को support करेंगे और contribute करेंगे. But like I said, the complete business case जो मैंने आपको पिछली slide पे दिखाया है, उसकी जो main जो है कि complementary business lines हैं, और we are a first to last mile logistics / e-commerce play, supported by elaborate technology. Up, everyone, what has emerged? So what is the new shape, the merging or the new shape, the shape of the new SLG Tracks? So ये हमारा Secure Logistics Group is the holding company, but also the company जहाँ पे हमारे transportation के assets हैं, long और medium और जो third party के साथ लगे हैं. और इसमें वो asset भी हैं जो हमारी Tracks Online नीचे जो e-commerce play है और warehousing, उसको जो गाड़ियां support कर रही. So Secure Logistics का जो fleet है उसका captive client Tracks है और बाकी third party clients. LogiServe is our tech platform and NBFC operation.
And if you recall, some of you I mentioned, Logiserve is licensed by Special Technology Zone in Islamabad, and it has got a 10-year corporate income tax exemption जिसके 8 साल रहते हैं, और इसी कंपनी को भी NBFC लाइसेंस मिला है, और यहाँ पे हमारा IoT भी है, एसेट ट्रैकिंग, और ये दो हमारी Fist and Skyguard, they comprise of our security division. So there are 5 legal entities in the group. Logiserve tracks Fist are 100% owned, Skyguard is 75% owned by SLG. Next. So our board is now as a 9-member board, which is fully compliant with the SECP requirement. But मैं board की आपको 3 बातें highlight करना चाहता हूँ. First, the relevant qualifications. We have people with degrees from leading business schools and institutions, from Columbia to London Business School, Purdue University, from University of Rochester, IBA. We have got CFA charter holders, and so on and so forth. Kelly School of Business. But more importantly, we have got a board which has got not only the finance background, but technology, digital background, as well as e-commerce background. Next slide. ये हमारे 9 members के सारे boards के brief profiles हैं, and so I would like to say that we have got a very robust corporate governance structure, which is driven by these members. Next. ये point I don't think any logistic में, पहली बात है logistic e-commerce में listed companies बहुत कम है, और अगर हैं तो उनके institutional international shareholders नहीं हैं. And since we are listed, so our compliance standards are aligned with PSX, SECP and CCP. शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर ये है. आज हमें सुबह से क्वेश्चंस आ रहे हैं. क्वेश्चन आया था कि आपकी पब्लिक होल्डिंग ज्यादा है. यस, केपी इज करंदास पाकिस्तान, देयर एक्विटी इज आल्सो इन द पब्लिक फ्लोट, और अगर देखा जाए तो करंदास की भी सऊदी बुकशान की भी पब्लिक फ्लोट में आती है. सो जो स्पॉन्सर्स हैं वो है द ओरिजिनल शेयर होल्डर्स 38, और ट्रैक्स उनकी प्रो रेटा 26% शेयर होल्डिंग जो है वो स्पॉन्सर्स में आती है, बाकी जो है वो इन अ वे फ्री है. तो बट स्पॉन्सर्स फॉल अंडर बोथ. सो दिस स्लाइड एक्चुअली डजंट शो कि कौन से शेयर्स ब्लॉक है वो, बट ये बाय नेम है, बाय पार्टी है, बाय पार्टी. Public float in that sense is more than 14.9. That is more than 25 PSX. Yeah, इनके about 25% आ रहे हैं. Next. ये बात हो गई है. Nationwide presence, geographical reach, warehousing 10 हो जाएंगे 4 सालों में. Fleet strength अभी 300 है, आगे चल के 500-600 में जा रही है. 24/7 हमारा control room है. Our IoT business is primarily for our own fleet containers, तो उसको भी वो देखता है 24/7, और ये क्रॉस बॉर्डर कैपेबिलिटीज हम डेवलप कर रहे हैं. We want to be a multi-market entity. We want to be a regional player eventually. ये आपको 25 के एसेट्स है मेन. अब ऑब्वियसली इसमें वो वाले एसेट्स हमने नहीं डाले. सिक्योरिटी कंपनी के बहुत सारे टेलीकॉम के एसेट्स होते हैं, so I didn't want to put here that security company owns whatever asset. So these are the main assets. 25. एक क्वेश्चन सुबह और आया, मैं प्रीएम्प्ट करना चाहता हूं, which is good question, कि आपकी लार्ज ट्रक्स जो हैं, ये ब्लू कलर प्राइम मूवर में आपने ग्रोथ की शो की. ये हमारा अभी जो हमारा फोकस है कि वी आर एडिंग टू आवर मीडियम और व्हीकल, जो भी आपको दिखाऊंगा, और ये जो 100, 205 लास्ट माइल ये सुजुकी रावीज है. सो आवर फोकस इज मीडियम और एंड लास्ट माइल, बिकॉज वी वांट टू सपोर्ट आवर ई-कॉमर्स बिजनेस जिसपे ग्रोथ ज्यादा है. बट हु नोस इन द फ्यूचर ईयर्स
ये अभी व्यू है, ये चेंज हो सकता है, सो प्राइम मूवर्स भी ग्रो कर सकते हैं आगे वो, बट फॉर द टाइमिंग ये हमारा व्यू है। Sir, in assets are, you have already shown one slide, intellectual property assets, softwares. जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है आईटी एसेट्स आपको दिखाए हैं वो इसमें नहीं है। और दूसरा हमारे अगर आईपीओ की बात करें सो ऑल द लोगोस आर रजिस्टर्ड विद आईपीओ ट्रेडमार्क्स, नया वाला एसएलजी ट्रैक्स अभी इन द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट, ये हमारे जो अंडर अभी हम 100 सुजुकीज ऐड करने जा रहे हैं बाय अक्टूबर, उसके की कुछ डिजाइनिंग हो रही है डब्बों की, सो दे विल बी लाइक इन दिस शेप, और ये नया लोगो होगा। ये ऊपर जो है ये पुराना लोगो है, बट दीज आर एक्चुअल जो हमारे मीडियम और व्हीकल्स हैं सुजू के एनपीआर जी हैं, ये 8 से 12 टन उठाते हैं। नेक्स्ट, ये ट्रैक्स की गाड़ी पुरानी ये सब अभी नए लोगों से रिप्लेस हो रही हैं और ये नई गाड़ियां रिप्लेस हो जाएंगी। जो रेंटेड फ्लीट है वो कंपनी ओन फ्लीट से रिप्लेस होगा। एंड दिस इज आवर ई-कॉमर्स एंड लास्ट माइल बिजनेस। नेक्स्ट, warehousing, ये हमारा these are the actual photographs of our warehouse in Kurangi, Karachi। इसी तरह का लाहौर में डेवलप करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद 3, लाहौर इस्लामाबाद है वो छोटे हैं और इनको काफी हम elaborate, there is about 100 to 120 million capex for this year earmarked for warehouses। I will go very fast। Security services, many thousand guards, आपको क्लाइंट लिस्ट समझ आ जाएगी, डिफरेंट चीजें ऑफर कर रहे हैं। आगे चलिए, ये हमारे क्या क्या हम ऑफर करते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज। आगे ये हमारी लॉजिसब के अंदर एनबीएफसी, लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, एसेट ट्रैकिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आगे चलिए, क्लाइंट है like 300 corporate institutional clients and 9,000 retail। ये जो तस्वीर लेफ्ट पे है ये आई जस्ट वांट वाले हमारा अपना फ्यूलिंग स्टेशन है at our marshalling yard in Lahore। So our trucks are, the large trucks are mainly white color, but quite a bit blue also। ये दो मेन color schemes है। आगे चलिए, sample clients in long and medium haul, third party clients। I will not take the names, but you can glimpse through the slide। Next, e-commerce and warehousing, sample clients, fashion houses, banks, and so on and so forth। Industrials भी हैं इसमें, like Pakistan Cable। Next, IoT asset tracking हुई, some insurance companies, some corporates with large fleets। Next, and banks, security services again। Next, okay, so now we come to the financial outlook section। I think we are doing fine। It's all 35 minutes into the presentation। Hopefully हम 15-20 मिनट इसको conclude करेंगे before we go to the Q&A। Next, so first half के results आज सुबह post हो गए हैं on Pucar। So I just want to say that despite about 35% increase in the number of shares due to merger, our revenue, मैं उसमें EPS से भी आऊंगा, but हमने 6 months 24 6 months और 18% revenue में growth है, 32% gross profit भी है, 57 PBT and then 100% net profit भी है। आगे चलिए, और ये जो मैं सॉरी पहले बात कह रहा था, despite 35% increase in the shares on weighted average basis, ये हमारी EPS है 1.61, और अगर मैं सिंपल लूं fully diluted 1, ये आती है फर्स्ट हाफ की 1.09। सो आई थिंक ये सेविंग सिनर्जीज की वजह से हुआ है।
डिजिटल का जो है वो इम्पैक्ट 1 अक्टूबर से आएगा, वो चल रहा है फरवरी से पायलट प्रोजेक्ट, बट 1 अक्टूबर से इम्पैक्ट आएगा। सिनर्जी से आ रहा है, एफिशिएंसी से आ रहा है, और ग्रोथ भी हो रही है। नेक्स्ट, ये सिनॉप्सिस है जी 5 ईयर फोरकास्ट का। सो फ्रॉम अ रेवेन्यू ऑफ 4 बिलियन वी आर फोरकास्टिंग, और इस पे पूरी टीम का साइन ऑफ है, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट टू अचीव रीच 15 बिलियन। और ये आप देख लें 26 इज द फुल ईयर, 26 इज द फुल ईयर जहां पे पूरा वी कॉल 25 द मर्जर ईयर, बट हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि इस साल हम अपनी इंटीग्रेशन को कंप्लीट करें, अपने कंसोलिडेट करें, और जो ओवरलैपिंग है चीजें उनको खत्म करें, और पूरा इम्पैक्ट 26 में आएगा जो नजर आ रहा है। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमने पैट 1.8 बिलियन और 4.25 4.5 की हमने ईपीएस 26 में अचीव करनी है। नेक्स्ट, अब ये आपको ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, ईबिटा, नेट प्रॉफिट एंड प्राइस टू सेल्स एंड प्राइस टू ईबिटा सारे वो हैं, ये प्रेजेंट किए हैं, एंड यू कैन सी द ट्रेंड। प्राइस टू सेल 0.9 का है 26 की, अगर हम फोरकास्टेड पे देखें। सेल्स को, और प्राइस टू ईबिटा 3.25 है, प्राइस टू अर्निंग 3.75 है, और फोरकास्टेड वो मैं इसमें भी अगली स्लाइड पे आता हूं, जरा इसको एलैबोरेट करूंगा, आगे चलिए। ये 2 साल का ट्रेंड है सेल्स का। सेल्स 3.3x, 3 ग्रोस प्रॉफिट 3.2, ईबिटा 2.3 एंड सो ऑन, नेट प्रॉफिट 2.5 टाइम्स। नेक्स्ट, ये हमारा 5 साल का है। नेट प्रॉफिट में देख रहे हैं कैगर 47% है फोरकास्टेड। नेक्स्ट, अब ये 2026 में बाय सेगमेंट कंट्रीब्यूशन है। अब मैं आपको, अब आप ये नोट कीजिए कि ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, फिनटेक किस तरह कर रहा है। ईबिटा में फिनटेक का 26 से 15% कंट्रीब्यूशन है, और ई कॉमर्स का 17 है, लॉजिस्टिक का 40। बट ये एज वी गो इनटू 26, 27, 28 ये सारा ये सारा Recording in progress. ये सारा चेंज हो रहा है, बिकॉज एज द फिनटेक गेट्स गोइंग एंड ई कॉमर्स और फिनटेक, तो इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा, और ये हमारी यही थीम है, और यही हमारी ब्रांडिंग है। आगे चलिए, अब आप ये देखिए कि 24 में लास्ट ईयर देयर वाज नो ई कॉमर्स बिफोर द मर्जर, लॉजिस्टिक, सिक्योरिटी का ब्रेकअप था। 26 में ई कॉमर्स रेवेन्यू का 60% है, और फिनटेक 5 और नीचे आए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 26 में ई कॉमर्स 43 और 2 है, दोनों कंबाइंड 45 है, और 29 में जाकर ई कॉमर्स 54, और फिर यानी आप ये देखें कि 26 से 29 में 45 से 70% पे जा रही हैं ई कॉमर्स एंड फिनटेक ऑफ द टोटल। और ये दिस इज व्हाई वी बिलीव वी विल बी एंड वी आर अ टेक इनेबल्ड, और टेक्नोलॉजी का मैंने आपको सारा बता दिया है कि क्या स्वीट है। सो वी डोंट वांट टू बी, वी आर नॉट अ ट्रकिंग कंपनी, वी आर नॉट अ सिक्योरिटी कंपनी, बट दिस इज द, और बाकी सपोर्ट कर रहे हैं। और सिक्योरिटी जो 28% है भाई 29 9% पे आ जाएगा, और ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक जो 24 से 72 था वो 21% पे आ जाएगा। रेवेन्यू, सॉरी रेवेन्यू में, रेवेन्यू आ जाएगा सिक्योरिटी 28 से 5 पे। आई स्टैंड करेक्टेड। नेक्स्ट, I say no. okay, valuation. So everyone, I want to start by saying that look, हमने सिर्फ प्राइस अर्निंग मल्टीपल का एक लिया है, एनालिसिस किया है,
और पाकिस्तान में हमारा क्योंकि पेयर ग्रुप नहीं है, ब्लू एक्स इज ओनली ऑन द जेम बोर्ड, साइज का कंपैरिजन नहीं है, और साइज मैंने से साइज इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन एंड द फाइनेंशियल्स, सो वी नो ऑफेंस मेंट हियर बट वी डोंट टेक देम एज आवर पेयर ग्रुप। इसी तरह बाकी लोग कंसिडर कर रहे हैं। किसी जमाने में आज से 30 साल पहले होता था ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हाटएवर, उससे पीएनएससी पीआईए होती थी, बट अब इन द मॉडर्न एज कुछ नहीं है टुडे, बट देयर आर कंपनीज व्हिच आर कंसीडरिंग, दे आर वाचिंग अस। कल को जब कभी कोई और कंपनीज आती हैं ई कॉमर्स लॉजिस्टिक, तो फिर पेयर ग्रुप बनेगा। सो व्हाट वी डिड, हमने मार्केट के इंडिसेस लिए हैं और रीजन से हमने आपको नाम भी बताते हैं अभी, ट्रेडिशनल एंड टेक लॉजिस्टिक कंपनीज ली हैं। और फिर हमने, और ये सारा क्यों किया, बिकॉज हम समझते हैं कि कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड एंड यू आर सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर्स, तो हमने प्राइस अर्निंग पे फोकस किया। बट ऑब्वियसली यू आर रिक्वेस्टेड एंड एनकरेज, यू मस्ट कैरी आउट एंड विच यू विल, आई नो, योर ओन वैल्यूएशन एनालिसिस from different using different methodologies like such as DCF. Next slide. इस वक्त KMI 30 11.5, KSE 10.4 एंड KSE और एवरेज इनकी आ रही है 10.6 इन तीनों इंडाइसेस की, और SLG जो है हिस्टोरिकल पे 8.2 पे है SLG ट्रैक्स, और फोरकास्टेड 3.8 पे है। नेक्स्ट, और ये आप देख लें ग्राफिकली किस तरह है। सो आई वुड, इफ somebody ask me this question कि how would you classify SLG track stock, so I said I will classify it as a value stock। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उससे भी कम पे ये अगर ट्रेड कर रहा है, तो ये ग्रोथ स्टॉक भी और वैल्यू स्टॉक है। नेक्स्ट, ये आपका रीजनल है। रीजनल जो पेयर्स हैं, फिन लॉजिस्टिक लॉन्ग का 15.6 का पी मल्टीपल है, और जो ट्रेडिशनल है वो 8.3 पे है, पीएसएक्स 10 से 11.1 एवरेज, और एसएलजी हिस्टोरिकल पे लाइक आई सेड 8.2। नेक्स्ट, अब व्हाई वी फील दैट आवर मल्टीपल शुड बी रीरेटेड, व्हाई you are all requested to, number one, post merger and consequent to SLG's transformation from a traditional to tech enabled logistic and fintech play, the merged entity offers a solid case for enhanced valuation multiples. पहला पॉइंट ये कि we are undergoing and we have सारे व्यू के ठीक है, डोंट वरी, आई होप मेरी आवाज इस तरह नहीं आई, बट सो वी आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म शिफ्ट हमारी ट्रेडिशनल टू टेक लेड एंड फ्रॉम 3PL to 4PL। अब टेक फर्स्ट मॉडल इंप्रूव स्केलेबिलिटी, एसेट टर्न्स, इंक्रीज इन ई कॉमर्स, मैंने आपको बता दिया है ई कॉमर्स का शेयर 43 से 54 पे जा रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और फिनटेक का 2 से 16। और हमारे रीजनल कॉम्स कौन से हैं? डेल आइवरी इंडिया, जेडी लॉजिस्टिक चाइना, फुल स्टैक इकोसिस्टम ओनरशिप नीचे। रीजनल कॉम्स निंजा वैन साउथ ईस्ट एशिया, लैला मूव हांगकांग, डेटा डिजिटल लेयर अनलॉक्स टेक मल्टीपल्स, ग्रैब, शैडो फैक्स इंडिया, डिवर्सिफाइड मार्जिन स्टैक है वाया सप्लाई चेन लैंडिंग, ये फिनटेक आ गया। तो कंक्लूजन ये है कि हमारा जो पेयर ग्रुप है वो हमें, वैसे देखा जाए तो हमारा पेयर ग्रुप तो जो बनता है वो डेल आइवरी जेडी लॉजिस्टिक बनता है, बट हम कह रहे नहीं हमें चले 15 का ना दे रीजनल का, आप हमें कोई एवरेज पे तो दे ना, आगे चले। और वो क्या बनता है, हमारे डोमेस्टिक इंडाइसेस की एवरेज 10.6 है, रीजनल ट्रेडिशनल की 8.3 है, और रीजनल फिनटेक मैं 15 नहीं आपसे मांग रहा। अभी तो मार्केट अगर 10 पे, अगर मैं तो करूं मुझे 11.5 का लगा दें, तो मेरी अगर 25 की ईपीएस 260 है, तो माय शेयर प्राइस कम्स आउट टू 30 रुपीज, और अगर मेरा 26 का ईपीएस लेती हैं तो मेरा 50 रुपए आता है।
हाँ, अगर कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आता है तो फिर हम बाकी बात भी करेंगे. All the shareholders are committed to long term, but we are open to ideas. कल को अगर हमें कोई JD.com कहता है किसी को फुटप्रिंट चाहिए, why not? We consider we are open mind. So, but otherwise we are only here to. Right now our focus is to meet our forecasted growth numbers and deliver to the shareholders. ये हमारा main focus है. So I would like to conclude by saying, April 1st से लेकर अभी तक जो रोड मैप था उस पे बड़ा डिलीजेंटली काम हो रहा है और बहुत मेहनत हुई है, और ये आपको जो सारी चीजें बताई हैं ये सब कुछ अंडर एग्जीक्यूशन है, और नाउ वी आर सीइंग ब्राइट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. अब टनल की हमें एग्जिट नजर आ रही है, हम निकलने वाले हैं. अब बैंक्स के साथ बातचीत चल रही है फर्दर लेवरेज करने की. हमारे पास इतनी हेडरूम है कि अगर मैं 50-50 डेट इक्विटी पे भी जाऊं तो मैं 4-5 आई डोंट 5-6 अरब और बोरो कर सकूं. बट नो, वी आर वेरी कंजर्वेटिव. हम आस्ता आस्ता चलेंगे और आगे अभी फ्लीट ऐड करेंगे और 3 वेयर हाउस फिट करेंगे, रीजन में जाएंगे, आईटी को एक्सपेंड करेंगे, फिनटेक को लॉन्च करेंगे. सो a fintech supported logistic play which is operating in the region, or e-commerce, domestic e-commerce but linked to the region and international through our international segment, through UPSs and Aramex of this world. So I'll stop here. I took exactly 48 minutes. टाइम किया था. अब थोड़ा सा पॉज ले लेती हैं. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने क्वेश्चंस जो है वो टाइप करके भी आप भेज सकते हैं, और आप क्वेश्चंस की हम नोट करते जाते हैं. और क्वेश्चन जब आप भेज रहे हैं, काइंडली इफ यू डोंट माइंड अपना ईमेल भी कर दें, नाम और ईमेल जो भी है एटलीस्ट ईमेल कर दें. जो क्वेश्चन अभी जवाब दे दिए, बाकी हम बाय ईमेल कर देंगे. एंड वी कैन हैव say about 30 minutes of Q&A session, depending upon किस तरह चल रहा है. And lastly, you have our email addresses, you know where we are. Head office is in Karachi. Islamabad, we call it the secondary head office. Our senior team is spread in 2 cities. Lahore is a major operational base and so on. But you can send us by email questions also. We are reachable. कुछ बड़े फंड्स हैं जिनसे बहुत पुरानी बातचीत एक चल रहा है, उनको हम इंडिविजुअली भी उनके साथ हम अगले 2 वीक्स में कॉल्स रखेंगे. And if anyone interested in a one-on-one discussion, we can fix a time. We can have separate Zooms. So I'll stop here. I need a break and some water. अब आप लोग questions shoot करें and we can answer you. साइड पे करो, साइड पे करो. चैट खोलेंगे. चैट छोड़ो, हाँ चैट मैक्सिमम. ऊपर चल जाओ सब. ओके, ये है क्वेश्चन ही अपना. On YouTube share link for letters. Okay, please also. ये कौन है? Awais Memon साहब हैं. So we can okay, sorry. So Gurre साहब, Awais Memon साहब का क्वेश्चन है. So can we, okay, Awais का Gmail भी आ गया है, नोट कर लें. Awais आपका आ गया, आपको वैसे भी भिजवा देंगे. ये बताइए, can we upload it on our website? ठीक है, okay. So Awais, thank you. We will upload our presentation on our website. और वेबसाइट वेबसाइट पे कर देते हैं, सेंड मानो. वेबसाइट पे करते हैं, which is better. Okay. Admin on again, mute or okay, got it. Shibaz Ali. Shibaz, ये क्वेश्चन हमेशा आता है. मैं जॉब about dividends. Like I said, we are a growth stock. इस वक्त जो हमने recapitalize किया है, $1 billion डाला है, shareholders and debt and equity and all that, और bank borrowings, it's all towards growth. But मैं आपसे बड़ा एक कैंडिडली बात करूंगा.
we keep discussing this. We have got substantial reserve profit carried forward. इस साल के अंत तक 2 billion plus है. So we will see कि अगर dividend नहीं क्या हम bonus issue कर सकते हैं with all its pros and cons, but no commitment right now. So we feel that our shareholders will obviously the shareholder return is A plus B. A is the capital gain, B is the dividend return. So we want कि हमारा जो A है share price ऊपर जाए जो वो deserve करती है. हमारा solid business case है for re-rating of the multiple. तो फिलहाल dividend is not in the pipeline, but certainly एक time आएगा बिल्कुल होगा. Next चलें. SLG core business is down. Why? ये कौन है? सलमान. सलमान, core business से आपकी क्या मुराद है? Core business, are you referring to e-commerce या traditional logistics? If you are online, can you elaborate that before I answer your question? ये शहबाज साहब हैं, सॉरी सलमान साहब. Next. जी सलमान साहब ने ट्रेडिशनल कमेंट बिजनेस की बात कर रही हैं. ठीक है. इसको बाद where other income come from? नवीन, other income का जवाब आप दे दीजिए. जी सर, अदर इनकम बेसिकली हमारे जो मर्जर की एडजस्टमेंट्स हुई हैं, कुछ कंसोलिडेशन हुई है, गुडविल रिकॉर्ड हुई है, तो उसके वजह से ये अदर इनकम आई है. और इस ऑब्वियसली इट्स सब्सटेंशियल इन द प्रॉफिट. तो ये कंसोलिडेशन की वजह से जो कंसोलिडेशन और मर्जर की वजह से जो हमारी एडजस्टमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से ये अदर इनकम आई है. Okay, thank you. Can you please upload this presentation? ये बात पहले होगी, हम वेब पेज पे कर देंगे. महमूद चौधरी साहब, last it would be useful to have a comparison of actual with your own present to help us understand the reliability. Okay, महमूद आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ. Obviously projections are, as you go along, they are fine-tuned. When we made the projections in February, March last time, we had not identified the quantum of the savings, synergies. Idea था, but इतना नहीं था. उस वक्त FinTech, NBFC का नहीं पता था. So उन दोनों चीजों से बड़ा boost मिला है projections को. So yes, when we make at the time of projecting and while making these projections, we are very confident that we will be able to meet these projections. However, there are always a certain level of uncertainty, macro events, macro economy, other events which are beyond our control, macro factors. But as of now, ये projection बड़ी सोच समझ के बड़ी prudently की गई. What views have changed since you last spoke? So ये मैंने आपको अभी बताया है. FinTech आ गया है, NBFC लाइसेंस आ गया है, synergies को पूरा आइडेंटिफाई कर लिया है और स्ट्रीमलाइनिंग हो गई है. रोड मैप, मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग का रोड मैप बन गया है और बहुत सारी चीजें होंगी जो कि एक चीज हम ऐड कर सकते हैं महमूद साहब के क्वेश्चन से थोड़ा सा लग ये रहा है कि जो हमने मार्च में फोरकास्ट दी थी, वी आर एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस. वो कह रहे हैं क्या चेंज. हाँ जी, हमारा लास्ट टाइम नेट जो था वो 900 कुछ था, अभी भी 900 ही है. तो यस, नेट इनकम में तकरीबन ये गुररेज साहब ने हाईलाइट किया वही है. सलमान साहब ने वही सवाल किया है दोबारा जिसका अभी जवाब नवीन ने दिया है. सलमान साहब फोकस है हमारी अदर इनकम लाइन पे. तो सलमान, अदर इनकम इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. अगर अदर इनकम हो तो उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, और अगर आपको टैक्स क्रेडिट मिल रहा है उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते. और जो भी प्रेजेंट हो रहा है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और IFRS से फुली कंप्लायंट है एंड हैज बीन अप्रूव्ड, वेटेड एंड ओकेड बाय द ऑडिटर. प्लस सलमान साहब आपने लिखा है विदाउट अदर इनकम अर्निंग नथिंग है. ये भी सही नहीं है क्योंकि आर नेट प्रॉफिट पोस्टेड इज अराउंड 438 मिलियन और 440 मिलियन. अदर इनकम तो 200 है. तो ये कहना कि जी उसके अलावा कुछ नहीं है
is probably not a correct state. और बाकी अभी आपको 6 महीने की फोरकास्ट भी दी हुई है जो अचीव हो रही है, तो ये इसका जवाब है। आगे फुजैल शुएब सर, अभी आपको बताया, आप सुन नहीं रहे थे शायद, आपने ये पहले क्वेश्चन डाल दिया है, इसको हम अपनी वेब पेज पर डाल देंगे प्रेजेंटेशन में। What will be the fund? This is a good question. Hamza Hussain, she is very good question. So Hamza, there are two type of lines obviously. हमारी जो ट्रेडिशनल रनिंग फाइनेंस है वो एग्जिस्टिंग है लाइनिंग 200 मिलियन और आगे भी आएंगी। वो रनिंग फाइनेंस जो है ट्रेडिशनल वो सपोर्ट करेगा फ्यूल प्रोक्योरमेंट, पेबल रिसीवेबल गैप, आपके जो नॉर्मल ओपेक्स है। अब जो डिजिटल वॉलेट की लाइंस हैं वो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देती हैं, कुछ और फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो लाइनें देती हैं ओनली फॉर डिजिटल लैंडिंग। उसकी सोर्सेज अलग है, बैंक्स भी हैं, नॉर्मल बैंक्स, और उसमें हमें ऑलरेडी तो 300 मिलियन की लाइंस ऑफर हो रही हैं और बाकी, और ये लाइंस जो हैं बाय एंड 26 1 बिलियन तक जाएंगी। सो दिस अ गुड क्वेश्चन। ये अगला, हाउ डज द कंपनीज एवरेज डिलीवरी टाइम कंपेयर टू इट्स कंपेटिटर्स? इसका ओके, सो अब डिलीवरी टाइम दो किस्म की है। अब आप एक तो है थर्ड पार्टी के कार्गो जा रहे हैं ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक पे, और दूसरा ई कॉमर्स का डिलीवरी टाइम। सो गुडे साहब आप प्रकी का बताएं, फिर डिप्टी सीईओ हसन बताएंगे डिलीवरी टाइम ऑफ आर पार्सल्स डिलीवरी। अगर आपका फुल 40 फीट कंटेनर है कराची से लाहौर, आपका क्या एवरेज है बताइए? एक रिटर्न जर्नी फ्रॉम कराची टू लाहौर एंड बैक, इसके रेवेन्यूज तकरीबन बनते हैं आजकल अराउंड 450,000 रुपीस फॉर द रिटर्न जर्नी। टाइम और टाइमलाइंस इसके हैं जी तकरीबन वो टर्मिनल एंड्स मिला के अराउंड 7 days 7 to 8 days राउंड ट्रिप राउंड ट्रिप। टाइम। ये आसान। For e-commerce, good question. For e-commerce, as Parvez Saab said in his presentation earlier, हम express transit चला रहे हैं. We are focusing more on smaller vehicles rather than prime movers and big vehicles. So हम उसमें 14-footer and 18-footer and 20-footer vehicles पर focus करें. हम करते ये कि हम कराची से लेके all the way to पेशावर हमने अपने ट्रक्स और अपने एसेट्स डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं। हमारी ट्रैकिंग का भी हमारे पास एडवांटेज है, हमारी IoT और ट्रैकिंग डिवाइसेस का। तो हमारा जो ट्रांजिट टाइम है कराची से लाहौर वो अंडर 25 आवर्स है, जिसमें हम अपना ट्रक पहुंचाते हैं कराची से लाहौर एंड देन सिमिलरली लाहौर टू कराची। और आई थिंक वी कंपेयर टू, क्योंकि हमारे पास अपना एयरप्लेन नहीं है अभी, एयर ऑपरेशंस नहीं है, बिकॉज वी डोंट नीड इट, वी फोकस मोर ऑन पैकेज डिलीवरी देन एनवेलप डिलीवरी। देयर इज अ की डिफरेंस। अगर इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, बट समराइजिंग इट इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस ट्रांजिट बाय रोड, वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट, प्रोवाइडेड कि हमारे अपने एसेट्स हैं, प्रोवाइडेड कि हमारे पास IoT और ट्रैकिंग एडवांटेज है, प्रोवाइडेड कि हमारे पास टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। थैंक यू हसन। ये डिविडेंड का मैंने अवैस पहले जवाब दे दिया है। ओके सर, कैन यू प्लीज कमेंट, आदिल नहीं, कैन यू प्लीज कमेंट ऑन ट्रैक्स नेट मार्जिन? देखिए अब कंसोलिडेटेड कंपनी है, अब मैं वापस स्लाइड पे जाके आपको दिखा सकता हूं, एक सेकेंड। अगर आप 25 का नेट मार्जिन लें, कैलकुलेटर देंगे, मैं आपको भी कैलकुलेट कर दूं, अमित आप भी देख लें, तो आपका जो 25 का आ रहा है पैट डिवाइडेड बाय 3984, सो हमारा 25 में कंसोलिडेटेड 22.7% नेट मार्जिन है, और यही जाके 26 में ये 23% है। So I think this will hover between 20 and 23-24% as we go along. अच्छा, ये सवाल है इंपॉर्टेंट, जैद मोहुद्दीन, कैन यू शेयर इनसाइट्स इनटू द कंपनीज एप्लीकेबल टैक्स रेजिम? सो इस सवाल का मैं जवाब देता हूं। देखिए हमारी जो
लॉजिसर्व कंपनी है वो टेक प्लेटफॉर्म भी है और उसकी टैक्स एग्जेम्पशन है. It provides certain technology services to the parent company SLG in terms of logistics और उसका एक रेवेन्यू नीचे आता है और फिर वो रेवेन्यू जब इनकम बन जाता है लॉजिसर्व का और फिर मैंने पहले भी बताया और वो रेवेन्यू जब वो इनकम बनती है नेट इनकम ऑफ लॉजिसर्व तो वो पेरेंट कंपनी के ऊपर एज डिविडेंड चली जाती है. ये सारा स्ट्रक्चर केपीएमजी के साथ बनाया है जिसकी वजह से प्योर लॉजिस्टिक का, अब मैं लॉजिस्टिक की बात करूं थर्ड पार्टी, हमारा जो इफेक्टिव टैक्स रेट है 14%. नंबर 1 हमारे सिक्योरिटी के जो 2 कंपनीज हैं उनमें पूरा 31% लगता है और तीसरा माय अपॉलॉजीज जो लॉजिस्टिक का नीचे आगे ऊपर जाता है उस पे 0 है और उधर 29 लगता है और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्टिव रेट कोई आ रहा है 14% ग्रुप का. अब आप आ जाए ट्रैक्स ऑनलाइन, वहां पे तो टैक्स क्रेडिट है और हमें वहां पे 0 टैक्स होगा जब तक हम वो 300 मिलियन का बेनिफिट कंज्यूम नहीं कर लेते. सो हमारे जो डिफरेंट बकेट्स है और यही वजह है कि मर्जर में जो हमें टैक्स एडवाइस मिली थी ट्रैक्स एंड लॉइन को हमने एज इट इज नीचे सब्सिडरी बनाया है टू रिटेन द टैक्स बेनिफिट्स emanating from Trax's old history. So e-commerce business जब तक 300 मिलियन का हमारे पास टैक्स क्रेडिट समझ नहीं आ पाए, ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक में अगले 8 साल तकरीबन 0% लगेगा, वो ऊपर से नीचे आता है जाता है और बाकी सिक्योरिटी में 29 या 30-31% है. सो ग्रुप का हमारा अभी 14% है और जब ई कॉमर्स से लगना शुरू होगा तो फिर उसके बाद वो एवरेज 14 से कोई 20-22-23 पे आ जाएंगे. सो वी हैव गॉट अ वेरी रोबस्ट टैक्स स्ट्रक्चर जो बड़ा सोच कर बनाया गया है. आपका सेकंड पार्ट जैक साहब है, आर द व्हीकल्स इन द फ्लीट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम, आपने ब्रांड्स पूछे हैं. जो हमारा लॉन्ग हॉल का फ्लीट है जो 40 फीट वाले हैं वो सारे के सारे हैं साइनो ट्रक के ओवोस. उसमें हमारे पास 266 हॉर्स पावर है, 290 हॉर्स पावर है और 336 हॉर्स पावर है. और जो हमारा मीडियम हॉल का फ्लीट है वो इसुजो, मेजॉरिटी इसुजो है विद सम फोटॉन्स. सो ये अभी हम 3 ब्रांड कर रहे हैं. लास्ट माइल वाली जो आपने सुजुकी लिखा है वो लास्ट माइल में ऐड होगी इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. यहाँ पे मैं एक और बात ही कहना चाहता हूँ कि इसके बाद हमारी मिशन में ये है, अभी क्योंकि हमें अर्जेंसी है हम सुजुकी देंगे बट वी आर वेरी कीन इसकी बियॉन्ड दिस लास्ट माइल स्पेशली जो रावी सुजुकी के बराबर है हम ईवी व्हीकल्स लाएं. वी वांट विल ट्राई आवर बेस्ट टू बी द फर्स्ट logistic play to import or procure EV vehicles. और कुछ Sorry. जी, if I can add to this, हमने हमारे जो लाहौर वेयरहाउस है हमने पहला बैटरी स्वैपिंग स्टेशन वहाँ पे इंस्टॉल भी कर लिया है विद अ चाइनीज कंपनी जहाँ पे हमारी नॉट जस्ट ईवी व्हीकल्स, हमारी जो मोटरसाइकिल्स हैं हम उसमें भी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी को पायलट कर रहे हैं. वी हैव बीन कंडक्टिंग ट्रायल्स फॉर पास्ट मेनी मंथ्स और अब हम लाहौर में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विद अ चाइनीज फर्म. If that goes successful, we'll roll it out across Pakistan. So from economics perspective also, it will be a game changer in logistics, and from a compliance to environmental standards also, I think it will be very beneficial. जी ये आसान ने बताया कि मोटरसाइकिल पे पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ईवी मोटरसाइकिल्स. बस वी हैव गॉट अबाउट 1400 राइडर्स, 1400 राइडर्स हैं. तो बट गाड़ियों को भी हम देखेंगे और बड़ा कीवी ये 100 तो ले आए. IFC से हमारी से बातचीत कुछ शुरू हुई है बट हम इसको आगे लेके चलेंगे. ओके नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन. सलमान साहब का ये कोई ट्रेडिशनल बिजनेस बट क्वेश्चन नहीं समझ आया. कहां पे दिस वन खाली ट्रेडिशनल बिजनेस. हाउ इज प्रोग्रेस ऑन द न्यू बिजनेस एरिया. नहीं ये उमर अहमद. उमर अभी तक हमने रीजनल मार्केट ताशकंद तक 2 ट्रक चलाए थे, 2 कंटेनर लोड. ये एक ट्रायल रन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है. हम सिर्फ करेंगे फोकस अभी उज्बेकिस्तान विच इज ताशकंद एंड कजाकिस्तान, वहां पे एक शहर है अलमाटी. तो ये 2 हमारी डेस्टिनेशन है. बाद में चाइना देखेंगे. दैट्स व्हाट वी वांट टू फोकस इन टर्म्स ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गोज जाना और आना, इस पे TIR और ट्रांजिट रेट दोनों। थोड़ा सा मैं करना चाहूंगा इनके सवाल से उमर, इफ यू कैन हियर मी। ये देखिए, जब TIR का लाइसेंस होता है किसी कंपनी के पास, तो यू कैन गो एनीवेयर वेयर द रोड टेक्स, एंड एज लॉन्ग एज दैट अदर कंट्री जो डेस्टिनेशन है वो TIR रिजीम में है। रशिया वेरी मच आप जो बात कर रहे हैं हो भी सकता है, लेकिन फॉर ऑपरेशनल कंट्रोल हमारी आउटरीच जब इतनी होगी कि हमारे अपने ऑफिसेस ताशकंद और अलमाती, जो परवेज साहब ने 2 जगहें बताई हैं, इन 2 जगहों को हम अभी जो हमने ट्रायल रन किया, हमने ऑपरेशन इधर से बैठ के किया है, डूएबल। नेक्स्ट स्टेप में वील हैव आवर ओन सेटअप्स देयर, फिर वहां से बैठ के हम मॉस्को तक का सोच सकते हैं। सो दैट्स इन द लेटर फेजेस। ओके, लेट्स मूव ऑन। मैंने कुछ मिस नहीं किया। प्लीज शेयर प्रेजेंटेशन। ओके, प्रेजेंटेशन पॉइंट डन, ये पहले भी आ गया है फ्रॉम इलियास अली। आदिल नसीम सर, कैन यू प्लीज कमेंट ऑन ट्रैक्स फ्लीट? अच्छा आदिल, ट्रैक्स का अपना, यही तो मैंने कहा था एसेट लाइट एंड हैवी, ट्रैक्स का अपना फ्लीट नहीं था, और यही एक्चुअली ये भी मर्जर का ड्राइवर है। हमारे पास फ्लीट था, वो उधर कुछ लगा दिया और कुछ खरीद रहे हैं। अभी तक ट्रैक्स ने, जस्ट टू गिव यू अ फिगर, 31 8 से 12 टन गाड़ियां इन हाउस या जो अभी प्रोक्योर की थोड़ी सी वो लगा दी हैं, और 31 गाड़ियां रेंटेड गाड़ियां कम कर दी हैं, और 5 बड़े ट्रक जो है कम कर दिए, वो ऑन कॉल है, जब जरूरत होती है हम दे देते हैं। इसी तरह ये फिगर बढ़ता बढ़ता भी 100 सुजुकी भी आ जाएंगी। तो हम रेंटल से निकल के जा रहे हैं, वी फील कि हमारा बेहतर कंट्रोल है और इसको हम बेहतर। सो ये आपके सवाल का जवाब। शमसुद्दीन, आप सर मिस करते हैं, और पहले ये भी रेपिटेशन है एक और बंदे की, बाबर सलीम का, इसका मैं जवाब दे देता हूँ। आपने बाबर साहब पूछा, और ये पहले भी सवाल किसी ने पूछा था, सो आई डोंट वांट के यू थिंक कि जी आप ये सवाल मिस कर रहे हैं, गलती से मिस हुआ है। रेवेन्यू का आपने पूछा, SLG के पुराने वर्टिकल्स के डिक्रीज आपने कहा है हुआ है इन नोट 19 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पढ़ा है। अच्छा बाबू साहब, एक तो परवेज साहब के भी पिछले सवाल जवाब से आपको आइडिया हो गया होगा कि फ्रॉम लॉजिस्टिक हमने एक पार्ट ऑफ फ्लीट हमने ट्रांसफर किया है टुवर्ड्स आवर ई-कॉमर्स बिजनेस। सो उसका इफेक्ट ऑब्वियसली ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक का जो हमारा है उसके ऊपर आया है। इट इज ऑल मैथमेटिकल, कितनी गाड़ियां हैं और उसका रेवेन्यू, सो वो अब उस तरफ चला गया। दूसरी बात ये है कि as Parvez Saab explained earlier also, that 2025 has been, for us, has been a year of merger. Colossal work and efforts and energies have been spent on merger की जितनी requirements हैं, integration, offices को merge करना, staff को merge करना, it is easier said than done. So senior management on both sides have been busy for last many months, and this exercise has now almost at the end, another few weeks, and then we are totally done with the new setup, and then attentions will be back onto other businesses also. So this is to answer you, और यही सवाल किसी और ने भी पूछा था। अब सर आपने पे will the other income continue in upcoming quarters? Sir, I would like to say something on other income because so many questions are coming. ये मेरी आपकी अदर इनकम सलमान साहब को फिक्र है क्या? जी सर, I have an answer because so many times he has asked the same question. So basically, Salman sahab, our consolidated, if you see our consolidated sales, our consolidated sales grew by 18% and gross profit increased by a similar percentage. At the consolidation level, operating expenses appear higher, but this is mainly due to one-off adjustments related to merger. Because as you know, this is the year of merger. The offsetting entries of these adjustments flow through other income and also the tax line. This was anticipated during the merger negotiation. So apparent surge in operating expenses should not be viewed in isolation. Other income needs to be considered alongside it to get the correct picture.
तो सर अगर आप मर्जर को, इसको मैं थोड़ा सा आसान लफ्जों में अगर बताऊं कि मर्जर को आप इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी कुछ मर्जर की एंट्रीज गई हैं, कंसोलिडेशन की एंट्रीज गई हैं और अदर इनकम में भी गई हैं, तो आप इसको आइसोलेशन में यूं ना देखें कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ एक सर्टेन परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है। आप अदर इनकम को भी देखें, तो उसके साथ अगर आप मिला के देखेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी। सो अदर इनकम नीड्स टू बी कंसिडर्ड। Okay, thank you, Naveed, thank you. Ilyas Ali, what is your view on long haul logistics services? Looking at the macro, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन तो बेहतर हुई यार, आपको 3 ट्रिपल अपग्रेड मिल गया है इन क्रेडिट रेटिंग, करंट अकाउंट को काफी अच्छा मैनेज किया हुआ है, आपके सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अभी तो पॉजिटिव पॉइंट कर रहे हैं, बिजनेस सर्वे में कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ रहा है, तो आई वुड से द सेंटिमेंट एंड द जनरल ट्रेंड इज पॉजिटिव और मार्केट भी आपको वो रिफ्लेक्ट कर रही है। सो यस, वी एज अ कंट्री, एज अ मार्केट, वी हैव टू कंसोलिडेट। जो अभी आपको एक अच्छा हेड स्टार्ट मिला है, आईएमएफ का भी ठीक चल रहा है, एक दो चीजें हैं मैक्रो लेवल पे, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस वगैरह उस पर बड़ा फोकस है, प्राइवेटाइजेशन पे भी बहुत जोर लग रहा है, और मैं समझता हूँ वहां भी कुछ अच्छी खबरें आएंगी इंशाल्लाह इन दिस ड्यूरिंग दिस ईयर। सो ऑब्वियसली ये चीजें सारी पॉजिटिव हैं, एंड दीज ऑल ऑवर वेल फॉर आवर बिजनेस। If I can add to this. या प्लीज। As far as long haul logistics and logistics in general is concerned, I think Pakistan में जो last एक सर्वे हुआ था 2016-17 में, $32 billion की आपकी logistics की market है, with the growth rate I think हम कोई $40 billion touch कर रहे होंगे, जो overall logistics market है। E-commerce की बात करूँ तो e-commerce में 7 से 10 billion dollar पे है and growing, अपने infancy में है। आज भी आपको पता है कि logistics is a tough nut to crack, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले होता है और आप कई ज्योग्राफीज में एक साथ ऑपरेट करते हैं। बलूचिस्तान हैज इट्स ओन चैलेंजेस, वी ऑपरेट इन ऑल 4 प्रोविंसेस, गिलगित बल्तिस्तान से लेके हम ऑल द वे बलूचिस्तान में काम करते हैं। तो जितने भी प्लेयर्स काम करते हैं, आई थिंक एक थोड़ा सा टफ प्ले है, बट हमारी जो मैनेजमेंट और हमारी जो बोर्ड की एक्सपर्टीज है आई थिंक बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है, हमारा प्रायर एक्सपीरियंस बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है इसे। और आई फील कि देयर इज अ ह्यूज गैप इन द मार्केट, देयर आर स्टिल नॉट गुड प्लेयर्स इन द लॉजिस्टिक्स सेगमेंट। तो बहुत सारा रूम है कवर करने को, आप इसी से अंदाजा लगा लेंगे देयर आर नॉट मेनी प्लेयर्स जो कि लिस्टेड हैं मेन पीएसएक्स पे, वी आर वन ऑफ आवर काइंड, सो आई थिंक वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप एंड there's a huge demand that we can put it. ओके, आदिल नईम, हाउ मेनी ट्रिप्स यार इसमें टारगेट होता है? लाहौर कराची 3 ट्रिप्स ऑफ लॉन्ग हॉल। मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन थोड़ा सा सब्जेक्टिव है ना, वे के ट्रिप्स डिपेंड करते हैं आप किस डेस्टिनेशन और ओरिजिनेशन पे, बट इसका मैं आपको जवाब किलोमीटर्स में देता हूँ, विच इज मोर, आई वुड से मोर क्लोज टू द रियलिटी। एक लॉन्ग हॉल ट्रक को, जो बड़ा 40 फुट वाला ट्रक है, इसको तकरीबन 80,000 से 1 लाख किलोमीटर करने चाहिए एक साल में। अब वो डिपेंड करता है कि किधर जाने हैं, वो 10 ट्रिप होते हैं या 100 होते हैं, वो डिपेंड करता है, बट अबाउट 80,000 to 100,000 किलोमीटर पर ईयर। एक क्वेश्चन नहीं आया जो मैंने अभी कंफर्म किया है फ्रॉम हसन डिप्टी सीईओ, we are now doing per day between 50 to 60,000 packages deliveries of e-commerce। अब हम 50 और 60 है, बट हमारा टारगेट obviously we want 20% market share, we want to be much north of 100,000 per day, हम उसकी तरफ, बट हमारा ट्रैजेक्टरी ट्रेंड बिल्कुल उस तरफ जा रहा है। देखिए बात बड़ी सिंपल है कि इतना बड़ा टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है, और फिनटेक हमने जो ले लिया है, ये हमारा इन हाउस अपना फिनटेक है, और सारा फोकस होगा टू सपोर्ट आवर ओन ई कॉमर्स। ये अब अगली स्लाइड पे आ गए हैं। ये वाटर का करदा सौदी चार so they can answer their I can't answer on their behalf, but I know for sure
Saudi Bukshan is a long-term partner, long-term player. They are, as you know, Saudi Bukshan is an established conglomerate in Jeddah, Saudi Arabia. So as far as we know, they have no plans to leave their long-term partners. बल्कि कल को अगर हम सऊदी मार्केट में कभी जाते हैं with our e-commerce and IoT and all that, so they are there to help us. Karandas is a private equity. उनका भी अभी जहां तक मुझे पता है अभी तो कुछ नहीं कर रहे. They did sell some shares, a portion which was last year October, September, but फिलहाल जहां तक मुझे पता है कोई प्लान नहीं है. But obviously you will have to ask them. मार्केट में और भी लोग पूछते हैं उनके बारे में, बट फाइन. मार्केट में हमारा बहुत स्प्रेड आउट शेयर ओनरशिप है, और देयर आर डेज व्हेन द शेयर इज ट्रेडेड 20-25 मिलियन एंड देयर आर डेज व्हेन देयर आर ओनली 2 मिलियन ट्रेड्स. तो है कैपेसिटी, फेयरली लिक्विड शेयर रहा है. हाउ कैन वी रीच यू फॉर वन? ओके, अवैस एनी टाइम. वैसे मैं आपको अपना ईमेल आईडी भेज देता हूँ. किससे भेज? वही मैं को कहूँगा, तो आप अपना ईमेल आईडी इधर लिख दें, तो मैं आपको ईमेल आईडीज भेज दूंगा ऑफ आर ऑल कंसर्न पीपल जिससे भी आपने बात करनी है. ओके, अगला क्वेश्चन आसान के लिए है. हाउ विल यू टैकल स्कैम इन कैश ऑन डिलीवरी? There are many scams. I think in any business that you do in Pakistan, cash business, especially, again, as I said, difficult to crack. I don't know which scam are you referring to, but since we have our own rider applications, we have our own booking platforms, so there are a lot of scams that we are able to cover through technology, and we provide complete visibility from our rider fleet to our merchants, to our in-house teams, support teams, and all. So I think that's well under control, and we've never faced any big issue in this regard. Mr. मैं प्रश्न करने को आपको देने से था. अच्छी कॉम्प्लेक्स होती है, तो मुमकिन करती है. Okay, next question. Please provide little bit detail on expected returns and margin profile from Annual. A good question again from Zaid Moyuddin. अच्छा Zaid, मुझे वापस जाना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया ना कि अल्टीमेटली NBFC, देखिए NBFC जो है ना डिजिटल, उसका अपना लेंडिंग प्रॉफिट है, स्प्रेड है, लेकिन वो जो ई कॉमर्स ग्रोथ देख रहे हैं वो ई कॉमर्स को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं. सो एक उसका इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, एक डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है. तो आपको मैंने जो शुरू में बताया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो कंट्रीब्यूशन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, वो 26 में, सॉरी मैं अब मुझे वो स्लाइड पे जाना पड़ेगा, मेरे पास प्रिंट आउट बड़ा छोटा है, वो 15% पे जा रहा है of the operating profit in 29, 15% पे. बस ये रही, आप बोलिए. देखिए, एक चीज को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ई कॉमर्स जो है ये बेसिकली ओपेक्स हैवी बिजनेस है. इट इज नॉट एसेट हैवी. आपको कैपेक्स उतना नहीं चाहिए, बट ओपेक्स बहुत है कैश ऑन डिलीवरी में और बाकी चीजों में. अच्छा, इसलिए इसके ई कॉमर्स के मार्जिन्स आर स्लाइटली लोअर देन द ट्रेडिशनल या जो हमारे एसएलजी के ओल्ड वो है. बट जो परवेज साहब ने भी आपको एक्सप्लेन किया, व्हेन वी ऐड एनबीएफसी इनटू इट, वी आर वेरी होपफुल that those margins will also be at par and we will be able to maintain our margins. With increase in NBFC, हम उसकी बहुत margins को बेहतर और करते जाएंगे. और इसमें एक और भी ज़ैद, एक और भी देखिए, हमारी एक स्ट्रेंथ है, हमारी बैलेंस शीट जो है वो 9.5 बिलियन पे है अभी बैलेंस शीट. हमारी स्ट्रेंथ ये है कि एक तो बैलेंस शीट अनलेवर्ड है, नंबर 1. नंबर 2, हमारी जो रिलेशनशिप है बैंक के साथ, हमें एक्सेस है टू पूल ऑफ कैपिटल. तो हम आस्ता आस्ता जब डिजिटल प्लेटफॉर्म को, अभी ये सिर्फ जो आप देख रही है ना फोरकास्ट 26 की, ये हर क्वार्टर 200 मिलियन ऐड हो रहा है ऑन लेंडिंग, और दिसंबर 26 में जाकर 1 बिलियन है. इमेजिन जब ये 3 बिलियन की बुक होगी,
जब ये 3 बिलियन की बुक होगी, इमेजिन जब ये 4 बिलियन की बुक होगी। और दूसरा एक और बात जैद मैं आपको कहना चाहता हूं, वी आर नॉट वीसी प्ले नाउ एंड वी आर अ मैच्योर प्ले। हमारी अगर कंपनियों को देखें तो उनकी सबसे पुरानी 13 साल 14 साल हिस्ट्री है, और इवन ई कॉमर्स की 5 साल हिस्ट्री है। सो वी आर अ मैच्योर प्ले, जिसकी वजह से हमें फंडिंग जो सोर्सेज हैं वो हमें वीसी की तरह नहीं देखती। So we are beyond Series A and Series B and seed rounds. अब हम जाके बात करते हैं like established business. So some of our competition are still in the phase of Series A, B, C and D for Delta. I didn't use anything else for D. तो हम जाते हैं, हम जाके large financial. So we will go to IFC, for example. तो ये आपका जो सवाल है तो ये कंजर्वेटिव है। अगर 3 बिलियन डिप्लॉय कर दिया तो फिर नंबर्स विल बी टोटली डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमजा आरिफ, गुड क्वेश्चन। हमजा, वी आर January to December. Parvez Saab, sorry, can I request whoever is running the Zoom to mute Shahbaz Ali, please? एक ही unmuted हैं, Shahbaz Ali. You can just mute him. Thank you. ओके, नोटेड कर रहे हैं। शहबाज अली, वीडियो वीडियो ठीक, थैंक यू यास। वापस जाइएगा। ओके, सो जर्मन 10 to 15 more minutes maximum. ये भी थोड़ा सा सलमान, आप ये क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं, कैन यू प्लीज आइडेंटिफाई आप किस ब्रोकरेज हाउस से हैं? सलमान, अगर आप अपना अनम्यूट करके, हमने करो, हमने म्यूट किया। अच्छा, आप कर रहे हैं। स्क्रॉल डाउन पे नहीं, सर आगे चले, मुझे आप सलमान, हमने सवाल बार बार किया, मैं बार बार दे चुका हूं इसका जवाब, इससे टाइम कंज्यूम हो रहा है। आई होप यू आर नॉट वन ऑफ आवर कंपटीशन यार। I think Salman has dropped from the call, so he's not there. मैं समझ गया था, but for everyone's consumption, I think he is post-tax. And for everyone's consumption, this is a wrong question asked again and again. वो जो जिस 220 million को ये कह रहे हैं, वो 200 million is for 6 months. So वो उसको अगर pitch भी करना है तो 438 के साथ करना चाहिए. So it's a wrong information spread to all the participants. Okay, Uzbekistan and Tashkent, how many trips? Sorry, Kashim Moise. जी, आई थिंक काशिम, मैंने नेट मार्जिन तो कैलकुलेट किया है, जो फोरकास्ट में आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं मार्जिन, इट शुड होपफुली शुड बी द सेम रेंज। बट अगर आप अपना ईमेल का एड्रेस दे दें, हम कैलकुलेट करके वो भेज सकते हैं पूरा ग्रोस मार्जिन एंड नेट मार्जिन। हाउ मेनी ट्रिप्स टू उज्बेकिस्तान एंड ताशकंद? जनरली ये लगते हैं पर मंथ राउंड ट्रिप 1.2 1.3 एवरेज आती है पर राउंड ट्रिप, बट देन द यील्ड इज मच हायर। आपको कराची टू ताशकंद मिलता है 6 से 8,000 डॉलर, वापसी का 2 से 2,500 3,000 डॉलर। ठीक है, इसका मैं आदिल साहब इसका जवाब दूंगा कि प्लीज कॉन्टेक्ट अस एंड वी गिव यू द कोड। हाउ मच विल यू चार्ज फॉर वन ट्रिप फ्रॉम लाहौर टू ताशकंद? अभी मैंने जवाब दिया है, इट वेरीज सीजन बाय सीजन प्रोडक्ट, बट जनरली जाने का 6 साढ़े 6,000 है, वापसी का 2-2,500 डॉलर है। गिरातरा नहीं, ये दिस इज नॉट गोइंग, इसकी डिफरेंट। ओके, जो भी आपने फिगर को गलत कोट किया हुआ है, बट यूडीपीएल का लोन
वापस हो गया है. It has been settled for your information. Other shareholder loans उनकी different terms and conditions हैं. Partly equity है conversion, partly debt है, partly quasi equity, conditional equity है. But this particular loan has been paid back. जी परवेश साहब, I would like to answer Talha Ganatra's next question. His question is, please share the impact on e-commerce business with the imposition of 18% sales tax and 2% income tax withholding in the latest budget. So yes, 2% you have correctly written, 2% income tax withholding, but as far as the COD is concerned and couriers are concerned, they are only required to withhold 2% sales tax and 2% income tax. So this 18% does not affect the COD business. So yes, we are 100% complying with the tax requirements, and basically it's just a pass-through item. The merchants have increased their prices in the market. You can see in Temu and other online marketplaces, the prices have gone up, and certain big players have restrained increasing their prices, and they are absorbing because obviously their profit margins are higher. So yes, this is just a pass-through item for us, and we are 100% complying with that, and it has not impacted adversely. In fact, it has impacted us positively on our business because of cash accumulation of taxes. Thank you, Naveed. Thank you. So I'll just go to the last three question. Bilal, आपका email note कर लिया है. Thank you. We will. मैं आपको भी एक email भी दूंगा और आपको सारी contact details इस पे भेज भी देंगे. शुजा सफी, thank you for your comment. शुजा, presentation का question answers का मजा आता है अगर questions जो हैं वो किसी मेरा पार्टी से ना हो. जिस अदर इनकम का था वो since the question appeared 3 times, so we checked online. So this is one of our competition, but let's leave it. That's fine. Doesn't matter. But अगर एक productive discussion हो तो मजा आता है. And I think we are equally enjoying this session. Thank you for your comment. You are not adding any good question again, Ahmed Sarfraz. Ahmed, मैंने पहले कहा था, देखिए अभी ना हमें e-commerce और fintech उसमें growth बहुत नजर आ रही है. वहां market share है और we believe we can add more value from those segments. उसको support करने के लिए छोटी गाड़ियां आ रही हैं और मीडियम आ रही हैं. But जब वो जरा अब we will wait till 2026 mid and then we will revisit and we will also see कि हमारा TIR कैसा चल रहा है, regional play कैसा चल रहा है. अभी तक CPAC नहीं खुली, आपको याद है कितनी बात हुई. तो अगर कोई डेवलपमेंट ऐसी होती है जहां नजर आता है, देखिए कैपिटल वहां डिप्लॉय करना जहां ज्यादा है, बट यस अपने फ्लीट को साथ साथ मेंटेन भी करना है, चेंज भी करना है, एंड हु नोज ये नंबर वापस 150 पे चला जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द न्यू प्लान. मैं प्राइम मूवर की बात कर रहा हूं. व्हाट्स द प्लान टू इंश्योर रिकवरी फ्रॉम ई-कॉमर्स परचेजर्स. यस, हमने ये आसान नहीं है, बट हमने 5%, आई थिंक सम परसेंट, वो अमीर के मोहसिन बताएंगे, प्रोविजनिंग की हुई है of the NPLs. जी पहले हसन and then over to Mohsin या अमीर. जी, so this is a very good question, Hamza. The good thing is देखिए हम जो हमारे पास जो NBFC का लाइसेंस है वो हमारी जैसी एंटिटीज, ये जो आपकी MSME या SME का सेक्टर है ना, we can play a very critical role because हम by virtue of our e-commerce business हम ये bigger merchants and small and informal merchants से हम सालों से connected हैं. We have their data और हम इनका पिकअप भी करते हैं, इनकी डिलीवरी भी करते हैं, इनकी कैश कलेक्शन भी करते हैं, इनके गुड्स भी हमारे पास होते हैं, वेयर हाउसिंग भी करते हैं. सो ये सारा हमारा एम्बिट है. और हम 2 प्रोडक्ट्स हैं जो आई थिंक मोहसिन who's our head of commercial ने ब्रीफ किया था. एक हम अपफ्रंट लेंडिंग करते हैं और एक हम इंस्टेंट लेंडिंग करते हैं. आपको दोनों का कोई डिफरेंस बता देता हूँ. अपफ्रंट लेंडिंग इज जब हम हमारे शिपर से, मर्चेंट से पिकअप होता है तो हम उनकी जब हमारे वेयर हाउस में फर्स्ट माइल हो जाता है, विच इज द पिकअप, शिपमेंट स्कैन होती है, तो हमारे एक एल्गोरिथम से हमारा
जो लोन लेंडिंग एल्गोरिथम है उससे गुजर के एक सर्टेन परसेंटेज शिपर को दी जाती है, नॉट द एंटायर अमाउंट, बेस्ड ऑन देयर हिस्ट्री एंड ऑल। तो उसके थ्रू उनको मिलता है और उसमें हमारे एनपीएल नॉन परफॉर्मिंग लोन जीरो होते हैं। हमारी दूसरी प्रोडक्ट है विच इज राइट नाउ प्रीडोमिनेंटली द डोमिनेंट प्रोडक्ट which is 97-98% of our lending play, it's the instant payments, जहां पे हम करते ही है कि हम डिलीवरी के within few hours हम अपने मर्चेंट्स को सेटल कर देते हैं, और जो हमारा और बैंकिंग की जो इनएफिशिएंसी है कुछ घंटों की या एक आध दिन की, वो हम अपने ऊपर लेते हैं। उसमें हमारा स्प्रेड 0.7% होता है of the average order value. My colleagues can shed better light on this. So hence, no NPLs when you talk about lending through our plan. As Parvez Sahab, our chairman, said, we've been very conservative and we've been very prudent in deploying the capital. और यही वजह है कि हमने बहुत थोड़े से कैपिटल से बहुत बड़ा थ्रूपुट अचीव किया। Okay, Amit, in our NBFC model और मोहसिन, हमारा NBFC का कितना है provisioning? So the NPL ratio that is assumed, like Hassan mentioned, right now 97-98% is instant payment. Of the 3 to 5% of throughput value of your upfront payment, we have assumed a 0.5% NPL ratio, because throughput is basically the cycle is 2 to 3 days. So the throughput is in billions of rupees, which is why the 0.5% it seems like small number, but we are very confident that this number is pretty much in line with what the industry standards is. Okay, thank you. Next, there are formal and informal players in the long haul logistics. इसकी एक लंबी discussion है, Ahmed Sarfraz. There are corporates, but generally in traditional logistic trucking, ज़्यादा informal है. Sole proprietors of trucks, corporates हैं कम हैं, but we are one of the large fleet owner. Considering the cost and the capex, Pakistan में तो 25 अगर बड़े prime movers हैं, you are considered large, because you know there's a substantial capex requirement. तो और डॉलर रुपये की पैरिटी की वजह से और मुश्किल हो गया है. So having said this, ज़्यादा ये informal है, but याद रखिए corporate जो हैं वो formal जो established corporate है, they want to deal with the corporate like us because we speak the same language. फिर उसमें होता है proper contracts हैं, हमारे सारे long term contracts हैं, हर साल terms हम negotiate कर लेती हैं. It's a complex formula. Fuel is a pass through. वो साथ साथ कुछ और चीजें indexation है ये. Next question, what is approximate? So मैं ये कहूँगा बाबर के, देखिए अब हम we don't look at old new. हमारा 21% मैंने कहा 22% मार्जिन है consolidated, and we want to retain 20% plus 22-23% मार्जिन. यार अब यहाँ पे हमें कहीं इसको करना है, ये क्या है? Sorry. Just a follow-up question. What are the terms and spread? अच्छा मैं थोड़ा सा बस again please mind ना कीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं बीच में, जिस तरह रेट पूछा गया ताशकंद का, ये वो चीजें जो डे टू डे बिजनेस की आप जैद मैं अगेन हम आपको भी एक ईमेल दे रहे हैं सबको पार्टिसिपेंट्स को. आई वुड अप्रिशिएट जितने इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि सीओडी का मार्जिन क्या है, लॉन्ग हॉल के रेट्स क्या हैं, आप हमें ईमेल पे भेज दें, हम आपको 1-on-1 भेज देंगे. Though I can read you are from Lucky Investments and I would love to discuss all your questions with you, but time भी एक constraint है और कुछ ऐसे भी है बीच में, तो okay. So I would say gentlemen, अगर आप नोट कर लें, the email I'm giving investor, which is INVESTOR, investor relation RELATION at slg.com.pk. ये भी हमने अपडेट करना है, इसको भी अपडेट करा दें. ये अभी इस ईमेल पे आप हमें ये जो टाइप किया है आप क्वेरीज भेज दें. We will answer those queries. So I would like Thank to you, Parvez Sahab. Thank you. Yeah, I would like to conclude by saying I have a question, please.
Thank you very much, everyone, for your participation. Hello. Hello. I'm saying thank you very much. We almost had a 1 hour 40-minute session. Good discussion, good questions. I hope we have left a good impression on the participants as a company, as a business. Please follow our progress. Question भेज दें, हम ये presentation भी load कर देंगे और तो question वो भी जवाब दे देंगे. Everyone, thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you. Hello, can you hear me? ये भी बड़ा आर्ट है. हाँ सर, कभी डिस्टर्ब नहीं होगा. वो हर क्रॉस करता जा रहा है, डिस्टर्ब नहीं होगा. अब है सुना है. अच्छा,